শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। নবম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 45 থেকে আরম্ভ করব। चैतन्य चरितामृतम आदि 9.45 ऑनवर्ड्स। महाप्रभु आगे बोल रहे हैं, माली হইয়া বৃক্ষ হইলাই এই তো ইচ্ছাতে, মালি হইয়া বৃক্ষ হইলাই এই তো ইচ্ছাতে, সর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হইতে, সর্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হইতে। যদিও আমি মালি তবু আমি বৃক্ষ হইতে ইচ্ছা করলাম, কেননা বৃক্ষ থেকে সমস্ত প্রাণীর উপকার হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারী ব্যক্তি, কেননা তার একমাত্র বাসনা হচ্ছে কিভাবে জীবকে সুখী করা যায়, জীবগণকে দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করবার জন্য তার সংকীর্তন আন্দোলন। তিনি নিজে বৃক্ষ হতে ইচ্ছা করেছেন, কেননা বৃক্ষ হচ্ছে সবচাইতে পরোপকারী প্রাণী। इसका मतलब क्या? তিনি নিজে বৃক্ষ হইতে ইচ্ছা করেছেন মানে কি? He wants to become a devotee. Why? Because devotee is the most important person in the society. He is the most important person in the society because he can take out a person from the cycle of birth and death. एक भक्त सबसे इंपॉर्टेंट समाज का व्यक्ति है, क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति है समाज का जो समाज को इस भवबंधन से पार करा सकता है, और कोई नहीं। तो गौरांग महाप्रभु साक्षात कृष्ण वृक्ष होने का इच्छा किए, भक्त होने का इच्छा किए, और उनसे एक भक्त से जैसे बहुत शाखा प्रशाखा निकलता है ना, हर एक भक्त से निकला हुआ है। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। वो यहाँ एक और उद्देश्य शायद आ सकता है कि वृक्ष कभी किसी से कुछ लेता नहीं, भक्त किसी से कुछ लेता नहीं है, बस देने का ही काम करता है, तो वो वृक्ष ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए और है। वेरी नाइस। তিনি নিজে বৃক্ষ হইতে ইচ্ছা করেছেন, কেননা বৃক্ষ হচ্ছে সবচাইতে পরোপকারী প্রাণী। শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৃক্ষের প্রশংসা করেছেন। महाप्रभु कोट कर रहे हैं, और कविराज गोस्वामी महाप्रभु को कोट कर रहे हैं, महाप्रभु भागवतम को कोट कर रहे हैं। अहो येषां वरम जन्म, अहो येषां वरं जन्म, सर्व प्राण्य उपजीविनां, सर्व प्राणी उपजीविनां, सुजनस्येव येषां वै, सुजनस्येव येषां वै, विमुख यान्ति नार्थिना, विमुख यान्ति नार्थिना। तो देखिए महाप्रभु ट्रीज के बारे में बोल रहे हैं। अभी ट्रीज के बारे में एक श्लोक कोट कर रहे हैं महाप्रभु भागवतम से। अनुवाद देखो কিভাবে এই বৃক্ষসমূহ প্রতিটি জীবের পালন পোষণ করছে, তাদের জন্ম সফল, তাদের আচরণ ঠিক একজন মহাপুরুষের মতো, কেননা বৃক্ষের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না। বৈদিক সমাজে ক্ষত্রিয়দের মহাপুরুষ বলে বিবেচনা করা হতো, কেননা ক্ষত্রিয় রাজার কাছে কেউ কোনো কিছু প্রার্থনা করলে তিনি কখনো বিমুখ করতেন না, है ना। हम लोग कर्ण का भी देखते हैं, हालांकि उनका थोड़ा केस गड़बड़ है, लेकिन उनका भी केस में देखते हैं ना, कभी कुछ मांगेगा तो विमुख नहीं करेगा, महापुरुष जैसा। সেই সমস্ত মহান ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৃক্ষের তুলনা করা হয়েছে, কেননা বৃক্ষের কাছ থেকে সকলেই সব রকম উপকার লাভ করে। কেউ তার কাছ থেকে ফল গ্রহণ করে, কেউ ফুল গ্রহণ করে, কেউ পাতা গ্রহণ করে, কেউ ডালপালা গ্রহণ করে, এবং কেউ গাছটিকে কেটেও ফেলে, কিন্তু তবুও কোনো রকম প্রতিবাদ না করে বৃক্ষ সকলকে সবকিছু দান করে, है ना। कोई सोचिए वृक्ष को काट ही लिया, लकड़ी के लिए लकड़ी मिलेगा, लेकिन वृक्ष कोई प्रतिरोध नहीं करता है, सिर्फ देते रहता है। মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতার
আরো একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোনো রকম বিবেচনা না করে গাছ কেটে ফেলা। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হচ্ছে মিলে কাগজ তৈরি করার জন্য, আর সেই কাগজ দিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্য অর্থহীন সমস্ত বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত যদিও কাগজের বিলের মালিকেরা হয়তো এখন বেশ সুখেই আছে, কিন্তু তারা জানে না যে অনর্থক এই সমস্ত বৃক্ষগুলিকে হত্যা করার ফল তাদের ভোগ করতে হবে। तो वृक्ष काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। काटना चाहिए, काटना चाहिए, लेकिन केवल कृष्ण भक्ति सेवा के लिए। जैसे आप भगवान का फर्नीचर बना रहे, जैसे आप ग्रंथ बना रहे, उससे भगवत ग्रंथ, उसके लिए काटिएगा तो वृक्ष आपको बोलेगा थैंक यू, थैंक यू, मैं एक जड़ पदार्थ हूं, मैं एक इतना लो चेतन वाला जीव हूं, लेकिन आपने कृपा करके मेरे को भगवत सेवा में लगाया। वृक्ष आपको थैंक यू बोलेगा। लेकिन वही जैसे वृक्ष पूरी में भगवान का में भोग वृक्ष बनता है काट लकड़ी से। आप अगर विग्रह बनाएंगे तो बहुत बढ़िया, वही वृक्ष काट बुक में भगवत ग्रंथ बनाएंगे, बहुत अच्छा फर्नीचर बनाएंगे भगवान का, बहुत बढ़िया। लेकिन वही वृक्ष को काट के आप अगर स्पोर्ट्स मैगजीन बनाएंगे, फिल्म फेयर मैगजीन बनाएंगे, और क्या क्या होता है, तो वृक्ष बहुत गुस्सा हो जाए, बोले मेरा शरीर को क्या क्या सेवा में लगाया, माया के सेवा में लगाया, वेरी बैड, ऐसे बोलेगा आपको। ज्योतिर्मय सीता माता जी, प्रभु ये आपने अभी मैगजीन वगैरह का बात बोला था ना, ये तो नहीं लिखा है इसमें। नहीं लिखा है, अभी लिखा नहीं। लिखा है। বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে, লিখা है? नहीं, ये नहीं लिखा है। इंग्लिश में खाली यही लिखा है, द पेपर इंडस्ट्री कट्स मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ट्रीज फॉर इट्स बिल्स एंड विद द पेपर सो मच रबिश लिटरेचर इज पब्लिश्ड। तो एक ही बात है, रबिश लिटरेचर, मैगजीन क्या है? अच्छा अब लिटरेचर वो है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहे कि वो जैसे वर्ड टू वर्ड आप लोग देखते हैं ना कि, तो आप बोलते हैं ना वहाँ पे प्रभु को, इसीलिए ना। साउंड क्लियर कीजिए, ये आपका साउंड हमेशा ही गड़बड़ क्यों होता है? फैन प्रभु, फैन बंद करती हूँ मैं। हाँ, ये सत्यभामा माता जी। जैसे पूरी में लकड़ी जलाकर ही भगवान का भोग बनता है। हाँ, तब ठीक है, तब लकड़ी को काट सकते हैं, लकड़ी भी खुश होगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। जो लकड़ी काट के, जो गाछ को काट के भगवान जगन्नाथ का सेवा में लगाया, वो गाछ के अगले जन्म में गाछ बनेगा या पशु पक्षी बनेगा? नहीं, और 100% मनुष्य शरीर मिलेगा। বস্ত্রহরণ লীলান্তে শ্রীকৃষ্ণ তার সখা গোপ বালকদের সঙ্গে বহুদূর গমন করে গাছের তলায় বসে যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন বৃক্ষসমূহের পরোপকার ও সহিষ্ণুতা দর্শন করে তিনি তার সখাদের এই কথাগুলি বলেছিলেন। এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরাও যেন বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু ও পরোপকারী হই। हमको तो लगता है हम कुछ कुछ भक्त के लिए बोल रहे हैं, हम देखते हैं, माने हालांकि दोष दर्शन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भक्त वो टेकर्स होता है, टेकर्स हम देखते हैं मंदिर में कुछ कुछ भक्त घूमते रहता है, वहीं खाना पीना कहाँ खिचड़ी दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, वो दे रहा है, क्लास में लेगा, ये लेगा, वो सब बने टेकर्स है। वो खाना पीना नहाना सोना वो सब वही वही हो रहा है। हालांकि अच्छा है, आस्ते आस्ते परिवर्तन होगा भक्तों की संगत में रहते हुए, लेकिन वी हैव टू बी गिवर्स, यहाँ बोल रहा है महाप्रभु जैसा गिवर्स होना चाहिए हम लोगों को। এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরাও যেন বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু ও পরোপকারী হই। অভাবগ্রস্ত লোক যখন বৃক্ষের তলায় এসে প্রার্থনা করে, তখন সে সব কিছুই প্রদান করে। বৃক্ষের কাছ থেকে এবং অন্যান্য পশুদের কাছ থেকে মানুষ অনেক উপকার গ্রহণ করে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে যে তারা সেই সমস্ত উপকারী বৃক্ষগুলিকে কেটে ফেলছে এবং সমস্ত পশুগুলিকে হত্যা করছে। এগুলি তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার পাপের কতগুলি নিদর্শন। स्पेशली गोहत्या हो रहा है, जो गाय माता का दूध पी के हम लोग बड़ा हुआ, उसी को काट के खा ले रहा है। वेरी सैड। यस, करना राधे माता जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि किस पर्पस के लिए ट्री काटा जा रहा है, ये तो पता नहीं चलता है ना, लाइक सॉइल इरोशन,
उसको रोकने के लिए तो ट्री कटना ही नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी फ्लड्स एंड ऑल दैट. तो चाहे किसी भी पर्पस के लिए ट्री तो नहीं, नहीं कटना चाहिए ट्री पर्पस के लिए, एकदम कटना चाहिए. पर्पस अगर अच्छा है तो कटना चाहिए. भगवान का विग्रह बनाने के लिए, भगवान का ग्रंथ छपवाने के लिए तो ट्री कटना ही चाहिए. उतना भी मत काटिए कि पूरा एकदम खाली कर दीजिए कि सॉइल इरोजन हो और फ्लड हो जाए. उतना भी नहीं, नॉट दैट मच कि डिफोरेस्टेशन हो जाए एकदम जबरदस्त, नहीं. लेकिन जो एक्सेस है वो काट ही सकते हैं. जो एक्सेस है वो काट ही सकते हैं. ओके. जगह जैसे नाखून दरकार है, हाँ दरकार तो है ना. अभी बोलेगा नाखून काटना चाहिए, हाँ जो बड़ा हो गया उसको काट लीजिए, एक्स्ट्रा हो गया उसको काटिए. हाँ, लेकिन नाखून को अगर उखाड़ दीजिएगा तब तो गया. ओके ओके घर ओके. काट नहीं पाइएगा. तो जो एक्स्ट्रा है उसको तो काटना चाहिए. थैंक यू. भगवान बहुत पर्याप्त ज्यादा देता है, तो उसको काटना चाहिए. लेकिन किसके लिए काटना चाहिए? ओनली फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. लॉर्ड. बनाइए, विग्रह बनाइए, दारू ब्रह्म जगन्नाथ विग्रह बनाइए, गोनीता विग्रह बनाइए. बहुत मंदिर में विग्रह लकड़ी का है. भगवान का फर्नीचर बनाइए, ऑल्टर बनाइए. और क्या क्या यूज कर सकते हैं भगवान का? वृक्ष का ग्रंथ बनाइए और कंठीमाला बनाइए. कंठीमाला के लिए तुलसी वृक्ष तो लगेगा, लगेगा ना. कंठीमाला, जपमाला. यज्ञ का जो संग्राम चल रहा था, हाँ, यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए. ये लकड़ी तेल बनाइए प्रभु जी. মন্দিরে সারাদিন থাকে কিছু নেওয়ার জন্য এটা একটু বিশ্লেষণ করবো. আমি কি বলবো, আমি অনেক ভক্তদের দেখেছি, ভক্তদের দেখেছি মানে দেয়ার জাস্ট টেকার্স. আমি দেখছি মানে হাত পা ধোয়ে ওখানে স্নান টান করে ওখানে সারাক্ষণ টেক 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 টেক. বাট দে ডোন্ট গিভ এনিথিং টু দ্য টেম্পল. দে ডোন্ট গিভ এনিথিং টু দ্য টেম্পল. যেহেতু ফ্রিতে কোথায় কি অনেক সময় অনেক মানে গরিব লোকও থাকে তাদের জন্য. হ্যাঁ, সো ফাইন, ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট অলসো. মন্দিরে কি অনেক গরিব লোক সেবা করছে না? কত মাতাজিরা মালা সেবা করছে, কিচেনে সেবা করছে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত ভালো না. বাট দে অলসো ওয়ান্ট টু কন্ট্রিবিউট টু গোবিন্দের সেবার জন্য সামথিং. ওরাও নিজেদের সময় দিচ্ছে, শ্রম দিচ্ছে, হ্যাঁ, ভগবানের সেবার জন্য অনেক দিচ্ছে. সত্যি কথা বলুন, সবার কি অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো যারা যারা ভগবানের সেবা করছে? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है. लेकिन बहुत लोग ऐसा भी है, बहुत भक्त ऐसा भी है, क्योंकि मंदिर में सेवा करने से प्रसाद मिल रहा है तो उसके लिए सेवा भी कर. अच्छा है ना, मंदिर में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है और भगवान भी खुशी होकर उनको कूपन देता है, फिर प्रसाद कूपन उधर प्रसाद देता है. तो इट्स गुड, इट्स गिव एंड टेक, इट्स वेरी गुड. ऐसा होना चाहिए भक्त लोग को. परम पूज्य भक्त प्रेम स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं, लोग भटकता है यहाँ वहां नौकरी के लिए, मंदिर में थोड़ा ताली मारने से वह रहना खाना पीना सब बंदोबस्त ऐसे ही हो जाता है. और इनफैक्ट मंदिर में सबसे ज्यादा क्राइसिस रहता है स्टाफ के लिए. मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, मंदिर में सबसे ज्यादा क्राइसिस रहता है स्टाफ के लिए. पानीहाटी मंदिर में एक कुक चला जाता है तो फिर लोगों का हाथ बैठ माने एकदम दिमाग में डिफिकल्ट हो जाता है. लोग नहीं रहता है, लोग नहीं मिलता है, कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के लाता है कुक. तो थोड़ा कोई अगर डिवोटी इनिशिएटेड है, वो अगर थोड़ा कुकिंग वुकिंग कर दिया, मंदिर उनको एकदम बहुत 5 स्टार ट्रीटमेंट करेगा. 5 स्टार ट्रीटमेंट करेगा क्योंकि लोग नहीं मिलता है. कि ठीक बोलছি নন্দ স্বরূপ প্রভু? हाँ प्रभु, लोग बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, है, बहुत सेवा है, लोग पावा जाए ना. यस पंकज प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. यहाँ जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं वैसे यदि मिसयूज नहीं हो तो ऑटोमेटिकली यूज कम हो जाएगा, तो इतना ज्यादा पेड़ काटना ही नहीं पड़ेगा. जो सूखा पेड़ का लकड़ी उसी से काम हो जाएगा. हाँ, तो जैसे करुणा राधे माता जी, सोचिए अभी अगर डेली 100 वृक्ष काटा जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण, सोचिए डेली 1 लाख वृक्ष काटा जा रहा है. अगर सिर्फ भगवान के लिए सेवा के लिए काटा जाएगा तो कितना होगा? 1-2 से काम हो जाएगा. हाँ, डेली में 5-6 से काम हो जाएगा, तो बाकी तो बच जाएगा ना. तो उतना भी रैंडम कटिंग नहीं होगा. रैंडम कटिंग समझ रहे हैं? ये पूरा काट दो, जितना भी सब काट दो, ऐसा नहीं होगा. तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, अभी नहीं होगा डिफॉरेस्टेशन अगर सिर्फ भगवान का सेवा के लिए काटेगा तो. शिव शंकर प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण.
আপনি সেবার জন্য বলছিলেন প্রভুজি, আমার খুব ইচ্ছা মন্দিরে সেবার করার জন্য। আমার যদি একটু কৃপা করে সুযোগ করে দেন, খুব উপকার হয়। নিশ্চয় নিশ্চয়, ঠিক আছে, বললেন যখন ভালো হলো, খেয়ালে রাখবো। Yeah. তো ওকে, ইয়েস, বঙ্কিম প্রভু বলুন। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে, দণ্ডবত প্রণাম। 4টে হয়ে যাবে। ওকে, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। যেটা প্রভুজি, গাছ তো জীবন আছে, জীব, হ্যাঁ, যা গাছে তো জীবন আছে, জীব আছে। হ্যাঁ, জীবকে দিয়ে ভগবানকে দিলে ভগবান খুশি যদি হয়, যদি সাপোজ মানে ভগবান পারপাস, তাহলে অনেক জায়গায় অনেক জীবকে হত্যা করে তাকে ভগবানকে প্রসাদ লাগাচ্ছে, সেটা কি রাইট অর রং? না, ও বুঝতে পেরেছি প্রশ্নের, বুঝতে পেরেছি। তো প্রভুর কথা হচ্ছে, মিউট করে দিন। অন্য জীবদের যে কেটে ভোগ লাগানো হচ্ছে সেগুলো ঠিক নাকি? যেমন আমরা দেখি মা কালীর মন্দিরে ছাগলকে কেটে ভোগ লাগানো হচ্ছে, তো জীব হত্যা হচ্ছে। ইজ দ্যাট রাইট? তো ছাগলকে কেটে ভোগ লাগানো আর গাছকে কেটে ভগবত গ্রন্থ বানানোর মধ্যে অন্তর আছে। তো এই বৃক্ষ যে হয় সে খুবই সীমিত চেতনার প্রাণী, সীমিত, একদম মিনিমাম। ওই জন্য তো কোনো প্রটেস্ট করে না। আপনি একটা ছাগলকে কাটতে যান, সে প্রটেস্ট করবে কিনা? 100% করবে, ছটফট করবে, এদিক ওদিক চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সে যন্ত্রণায় ছটফট করবে। কিন্তু বৃক্ষ তা করে না। ভগবান এইভাবেই বানিয়েছেন। এই 84 লক্ষ জনের মধ্যে বৃক্ষ কিতনা কিতনা 10 লাখ या 20 লাখ হ্যাঁ করছে 20 लाख 20 लाख। লাখের সাথে, হ্যাঁ। তো এইভাবেই বানিয়েছেন ভগবান। তারা তাদের সীমিত চেতনা দিয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে সব বৃক্ষকে কাটার কোনো প্রয়োজন হয় না। কিছু কিছু বৃক্ষ ভগবত সেবায় লাগে। যেমন যেমন আমি বলছিলাম তুলসী বৃক্ষ, যেগুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সেগুলো দিয়ে কণ্ঠিমালা বানানো হয়। নিম বৃক্ষ দিয়ে দারুব্রহ্ম বানানো হয়। অনেক বৃক্ষ দিয়ে ভগবত গ্রন্থ বানানো হয়। তো এমন না যে 20 লক্ষ যদি হয়ে থাকে বৃক্ষর জনি, সব 20 লক্ষই লাগে না। ওদের মধ্যে কিছু কিছু লাগে, হয়তো হ্যান্ডফুল, मैक्सिमम 20-50 वृक्ष लगता होगा भगवत सेवा के लिए, and that's absolutely fine। এগুলো ভগবত অনুমোদিত। I repeat, এগুলো ভগবত অনুমোদিত means in English it is God permitted। কিন্তু পশু হত্যা বা পাখি হত্যা, এগুলো ভগবানকে ভোগ লাগানো, এগুলো, হ্যাঁ, এগুলোও কেউ একই ব্যাপার, এর সঙ্গে ওটা তুলনা হয় না। नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हम लोग को प्रत्येक साल मैंने एक एक पेड़ लगाना का उत्साह रहना चाहिए। जैसे विदेश में ब्राजीलियम ने कहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, बीज को माटी का अंदर में, गोबर का अंदर में रख के सुखा के रखते हैं। जब बारिश का आने वाला आता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, मैंने ये प्लेन में, क्योंकि वो पक्षी जो है, चिड़िया जो लोग खा नहीं सके। जैसे बारिश आएगा तो वो फिर वहां से पानी लग के वो उठता है। ये Yes. हर एक माने भक्त को, जैसे हम लोग कहीं रखता है घर में, कहीं अभी आम का सीजन है, आम का गुठली, और बाकी बाकी जो बीज जो है ना, रखना चाहिए। जैसे हम लोग कहीं परिक्रमा जा रहा है तो रास्ते में फेंक जाना चाहिए, तो इसमें भी हो जाएगा। ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु यही जो बंकिम प्रभु ने पूछा ना प्रभु, उसी पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं हमेशा। एक सुना था शिला प्रभुपाद का लेक्चर में, वो बोल रहे थे कि अगर बिकॉज एक जन ने बोला आप लोग भी तो प्लांट काट के खाते हो, ये वो, अगर हम लोग मतलब एनिमल्स को खाते हैं तो प्रभुपाद ने बोला कि इफ एनिमल ईटिंग एंड प्लांट ईटिंग इज सेम, then you can cut men also, you can cut human beings and eat them also, then why don't we eat human beings then, if all are on the equal level? So then उन्होंने बोला कि चेतना पे डिपेंड करता है, क्योंकि पेड़ की सबसे कम चेतना होती है, बट उनमें भी जान होता है। दैट्स व्हाई वी ऑफर एवरीथिंग एंड ईट। करेक्ट। अभावग्रस्त लोग और एनिमल्स में भी कुछ कुछ परमिटेड है जिसको भगवान के सेवा में हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे समुद्र में अगर जो कॉन्च शेल होता है, हाँ, वो भी एक इंसेक्ट है, वो भी भगवान का सेवा में लगता है। तो जो जो कॉन्च शेल प्राण त्याग किया गया है, त्याग कर दिया है, तो वो वाला जो है हम लोग भगवान के सेवा में लगाता है। वैसे ही जो जो पशु गाय, जो गाय अपना शरीर त्याग किया है, मृत्यु हो गया है, उनके चमड़े से मृदंग बनता है, दैट्स अलाउड, ये परमिटेड है शास्त्र में।
और क्या यूज होता है, और कोई? प्रभु सीप में से मोती निकाल के भगवान का ज्वेलरी भी बनता है। माता जी हैंड रेज करके बोलिए। वेरी नाइस। शंख बनता है प्रभु जी, शंख बनता है। शंख तो बोल दिया। और पंकज प्रभु, और कोई उदाहरण है इसमें? प्रभु जी वो भगवान जो यूज करते हैं, बिगुल जो बजाता है, सिंगा, सिंग से। हाँ, वो भी तो बफेलो का है, बफेलो हॉर्न, श्रृंगाना बोलते हैं ना। यस इंद्राणी माता जी। ময়ূরের পালক দিয়ে পাখা। वेरी गुड। मयूर का ऐसा नहीं कि मयूर को मार के उसको पकड़ के खींच दो दूर से, नहीं, मयूर ऐसे ही पालक गिराते रहता है। आप दिल्ली विल्ली में जाइएगा, नोएडा साइड में देखिएगा, रास्ते में गिरा हुआ है मयूर का पाखा। वो सब आप ठाकुर जी का सेवा में यूज कर सकते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल। निर्गुणा नीलम्बरी माता जी। प्रभु जी मृदंग में भी तो यूज होता है ना, शायद मृदंग में कुछ गाय का मटेरियल यूज होता है क्या, जो खोल हाँ, बनती है? वो जो गाय शरीर रखा है उनका चमड़ा यूज होता है। सुदामाई वल्लभी माता जी। प्रभु जी चावल भी तो पूंछ से बनता है ना, गाय की। हाँ, वेरी गुड। नील गाय के पूंछ से, पूंछ का फर। ऐसा नहीं कि नील गाय थोड़ा फर काट देंगे तो कुछ नहीं होगा, तो उसका भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। यस प्रभु जी, चामर का बात ही बोल रहे हैं। हाँ, चामर का वो तो यूज होता है। तो ये सब अनुमोदित, दीज आर परमिटेड बाय द स्क्रिप्चर्स। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी घोड़ा का पूंछ काट के आप यूज करेंगे चामर के, नो। तो एग्जैक्टली बता दिया गया है कि नील गाय का फर कैन बी यूज्ड फॉर चामर। एग्जैक्ट है। ऐसा नहीं कि कोई भी पालक योग नहीं, ओनली पीकॉक फेदर बोलेगा, नहीं मुर्गे का फेदर नहीं चलेगा, मुर्गे का फेदर वो तो परमिटेड है, वो तो शास्त्र में दिया हुआ है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी हम लोगों का जो टॉपिक था, हम लोग को जो हम लोग को सब्जेक्ट है একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি, দেখলেন না? আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন ওটা কতক্ষণ ভুললো না, ওটা ঠিক আছে, কিন্তু যে পরবর্তীকালে যে সাবজেক্ট, इनका प्रश्न हमको बहुत डेंजर लगता है। एक कोई टॉपिक आएगा, अभी 15 मिनट चला गया, अभी 6:31 बज रहा है, मैंने एक भी श्लोक कंप्लीट नहीं किया अभी तक। समझे? कुछ तो एक करना, पोर्शन करना पड़ेगा ना। ओके, एक कोई टॉपिक आएगा, उसमें 20 लोग हाथ उठाएगा, एक एक को बोलने देंगे, अभी नहीं बोलने से अपराध हो जाएगा, उनको बुरा लगेगा, हमको बोलने नहीं दिया, इनको बोलने दिया, और फिर उसमें चर्चा 15-20 में चला जाएगा। फिर हम लास्ट में एक श्लोक किया, क्या कुछ बनाएगा राजीव बम प्रभु एक श्लोक के ऊपर? অভাবগ্রস্ত লোক যখন বৃক্ষের তলায় এসে প্রার্থনা করে তখন সে সবকিছুই প্রদান করে। বৃক্ষের কাছ থেকে এবং অন্যান্য পশুদের কাছ থেকে মানুষ অনেক উপকার গ্রহণ করে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে যে তারা সেই সমস্ত উপকারী বৃক্ষগুলিকে কেটে ফেলছে এবং সমস্ত हो गया। अगला श्लोक। এই আজ্ঞা কইল যদি চৈতন্য মালাকার, এই আজ্ঞা কইল যদি চৈতন্য মালাকার, পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার, পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়ে বৃক্ষের বংশধরেরা, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা परम आनंदित होले। हरि बोल। गौरांग महाप्रभु खुद भी भक्त बनना चाहते हैं, तो इसीलिए भक्त मंडली बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা হচ্ছে যে আজ থেকে প্রায় 500 বছর আগে নবদ্বীপে জগতের পরম মঙ্গল সাধনকারী যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা যেন সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর তথাকথিত বহু অনুগামী রয়েছে যারা একটি মন্দির বানিয়ে ভালো করে খাবার জন্য আর ঘুমানোর জন্য বিগ্রহ দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট থাকে। बहुत ऐसा मंदिर है, बहुत ऐसा मंदिर है। अच्छा मंदिर बनाया, कोई एक डोनर को पकड़ा, फिर अच्छा रूम वूम बनाया, अपना खादन अच्छा हुआ, भजन अच्छा हुआ, बस बैठो, भजन करो और भोजन करो, भजन करो और भोजन करो, भजन करो और भोजन करो। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার যে কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। अरे क्यों माथा बच्चीले लोगों को उद्धार करना, कोई आएगा तो ठीक है, हम लोग अजगर वृत्ति करेंगे प्रचार के लिए। प्रचार के लिए अजगर वृत्ति करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। प्रचार के लिए अजगर वृत्ति माने क्या? आप बैठे रहिए, कोई मंदिर में आए तो उनको भक्त बनाएंगे, लेकिन हम लोग बाहर जाकर खटेंगे नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे,
भक्ति वृक्ष नाम हट्ट नहीं खोलेंगे। उतना झमेला क्यों लेंगे? हम लोग का तो हो गया ना, हम लोग का खाना पीना रहने का व्यवस्था कर देना ठाकुर जी, बस खत्म। यस इंद्राणी माता जी। এই শ্লোকার্থ দিয়েছে 47 নম্বরে যে বৃক্ষের বংশধররা হচ্ছে মহাপ্রভুর ভক্তরা, পরমানন্দ। বৃক্ষ বলতে এখানে ওই ভক্তদের বোঝাচ্ছে, মহাপ্রভুর ভক্তদের। ইয়েস, কিন্তু নিজেরা সেই কর্ম সম্পাদন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হলেও অন্য কাউকে সেই কাজ করতে দেখলে তারা ईर्ष्याয় জ্বলে ওঠে। खुद नहीं करेगा और अगर कोई कर रहा है तो उनसे ईर्ष्या करेगा। देखो इन लोग ठीक से नहीं कर रहा है, देखो इन लोग फिरंगी लोगों को भक्त बना रहा है, देखो इन लोग ठीक से नियम पालन नहीं कर रहे, हम लोग पटल नहीं खाता है, इन लोग पटल खा रहा है, हम लोग गाजर नहीं खाता है, इन लोग गाजर खा रहा है। देखो भगवान को पिज्जा भोग में लगाया, छी 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 छी। हाँ, ये सब हम लोग का भारतीय खाना नहीं है। ऐसे करके उन लोग से क्रिटिसाइज और क्रिटिसाइज और क्रिटिसाइज ही करेगा, लेकिन खुद उठ के कोई प्रचार नहीं करेगा, खुद बाहर घर से नहीं निकलेगा प्रचार करने के लिए। जी जी, देखो हावड़ा स्टेशन में भगवत गीता बेच रहा है, छी वेरी बैड। हाँ, भगवत गीता पवित्र ग्रंथ है, हाँ हावड़ा स्टेशन में बेच रहा है, वेरी बैड। अरे खुद निकल करो ना, तुम प्रचार करो। वो कुछ नहीं करेगा, ना किसी को करने देगा, सिर्फ क्रिटिसाइज करेगा। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আধুনিক অনুগামীদের এমনই দুর্দশা। কলিযুগে প্রভাবে এতই প্রবল যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তথাকথিত অনুগামীরা পর্যন্ত তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। समझ में आया? অন্তত পক্ষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা, কেননা সেটাই হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা। তৃণের থেকেও সুনীচ হয়ে এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের সর্বান্তকরণে তার সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা উচিত। ज्योतिर्मय सीतामती जी। प्रभु एक बीच में एक स्टेटमेंट किया, इसका मतलब क्या हुआ प्रभु? दिस इज द कंडीशन ऑफ द मॉडर्न फॉलोअर्स ऑफ द चैतन्य महाप्रभु। यहाँ क्यों बोला जा रहा है ये चीज प्रभु? Modern followers, so they are following, they are also in disciplic succession, but they are not bothered about preaching. They are more bothered, they are in disciplic succession, but they are not bothered. दीक्षा विषय सब हो गया, मठ का नाम नहीं लेंगे, वो लोग भी मठवासी है, लेकिन वो लोग का इतना माता पच्ची नहीं है। उन लोग अपना भजन कीर्तन ठीक से करेगा, लेकिन अच्छा, उतना जो उन लोग गोष्ठानंदी नहीं है, उन लोग भजनानंदी है। मतलब भजनानंदी बोलने भी इनको। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 48। जय जहा तहा तो ऐसे कोई है प्रभु ना, ऐसे हैं लोग जो मतलब जो फॉलोअर्स है चैतन्य महाप्रभु के, बट दे आर नॉट प्रीचिंग। हाँ है ना। अब बताइए कितना इस्कॉन को छोड़ दीजिए, इस्कॉन के अलावा जितना परंपरा वाला मठ है, अच्छा उन लोग है अभी। हाँ, उन लोग इतना प्रचार करता है नहीं। अच्छा ओके, बड़ा सेट नहीं करते प्रभु, मतलब उन लोग तो उन लोग चैतन्य महाप्रभु जब बोल के गए प्रभु, तो उन लोग क्यों नहीं करते? बिकॉज बाकी मठ भी तो सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या उन परंपरा से आए हैं, तो उन लोग ऐसा क्यों नहीं करते प्रभु? मठ वाले लोग जब बोले हाँ, उतना हेडेक क्यों ले, उतना अभी इस्कॉन में तो ऊपर से जीवीसी से सब प्रेशर आता है ना, डिसिप्लिन कोर्स करो, प्रचार करो, ऊपर से सब ये सब फैसिलिटी बना के रखा है। नाम हट, इस्कॉन यूथ फोरम, बच्चे लोग के लिए वृंदा गार्डन, ये सब बना रखा है। ऊपर से सब ये सब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से हो रहा है, प्रभुपाद एकदम स्ट्रिक्टली बना कर गए। बाकी में ऐसा नहीं है। अगर नहीं बोला जाए ऊपर से तो हम लोग भी नहीं करेंगे ना प्रभु। हाँ, तो हम लोग का तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, और हम लोग परंपरा में और स्पेशली हमारा जो युगाचार्य श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने प्रचार के लिए बहुत स्ट्रेस किया। उसीलिए इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। प्रीचिंग के लिए बहुत टाइम हम लोग बहुत चीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उस दिन मंदिर में गुरु सदय रोड में कोई एक भक्त ने प्रश्न किया था परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह महाराज को, जो इस्कॉन का मंदिर क्यों खुला रहता है? हम लोग देखो बाकी सब मंदिर ग्रहण के समय बंद कर देता है। तो आप लोग ने उत्तर सुना होगा, महाराज ने बताया इस्कॉन में प्रचार चलता है, सब कुछ बहुत भगवान का सर्विस चलता है, मॉर्निंग से सब कुछ मंगला आरती होता है, भोग लगता है, तो हम लोग उस सेवा बंद नहीं करते। सारा दिन मंदिर बंद कर दिया तो कैसे प्रचार चलेगा? तो इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। प्रीचिंग के लिए बहुत चीज हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और प्रीचिंग जितना ये नेगेटिविटी है ना, आप म्यूट करिए। कहा चूहा का आवाज क्यों आ रहा है आपका मोबाइल से?
ये जितना भी नेगेटिविटी है ना ग्रहण के समय, ये सब कट जाएगा। अरे व्यक्ति भगवान का प्रचार कर रहा है, उसका ग्रहण का क्या इफेक्ट आएगा? मंदिर में क्या इफेक्ट आएगा? कुछ नहीं इफेक्ट आएगा। हजारों हजारों भक्त लोग सब भगवान का सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं आएगा इफेक्ट। उन लोग का मंदिर में बहुत अच्छा महाराज बताया था, मैक्सिमम मंदिर में क्या होता है, सिर्फ भगवान को दर्शन करो, टाका दो, निकलो निकलो निकलो, नारियल फोड़ो निकलो, नारियल फोड़ो निकलो। बहुत अच्छा महाराज ने बताया। ये सची सुतनाथ शिवाज प्रभु। হরে কৃষ্ণ বাবু, যার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা, আপনি সবসময় চলে যাচ্ছেন 3টে ক্লাস 4টে ক্লাস, যে যত ক্লাস পড়ো খালি ক্লাস বাড়িয়ে চলো, আমাদের ক্লাস নিয়ে খালি পিপিং করে যাও, একটাই লক্ষ্য। বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছি। কত লোক যোগ্য ব্যক্তি, কয়েকজন এখানে 10-15 বছর ধরে ক্লাস করছে, কিন্তু নিজেরা এখনো ক্লাস করায় না। অবাক অবাক হয়ে যায়। 10-15 বছর ধরে ক্লাস করেছে, কিন্তু এখন অব্দি নিজেরা ক্লাস করতে বসেনি, ক্লাস করাতে প্রচার করছে না। না ক্লাস করবো না, কেন হেডেক নেব? আমরা অনেক বছর নিজের বাড়িতে ভক্তিবৃক্ষ করিয়েছি, বাজার থেকে বাসন মাজা পর্যন্ত সবকিছু হয়েছে, অনেক লোকের টাকা পয়সা সবকিছু আছে, কিন্তু ঘরে ঢোকে বাবা, ঘর নোংরা হয়ে যাবে, টয়লেট নোংরা হয়ে যাবে, কে করবে বাবা? यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, तो प्रेमानंद महाराज के द्वारा किसी ने प्रश्न किया है कि प्रभु ये ग्रहण काल में क्या हम लोगों को पूजा अर्चना बंद कर देनी चाहिए, उचित है? तो उन्होंने बताया है कि भगवान है, भगवान के सामने ग्रहण और ये पाप पुण्य कुछ नहीं है, उनको सबको हमेशा पवित्र है, उनके पास कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पूजा अर्चना उनकी बंद नहीं होनी चाहिए, सेवा सेवा है, सेवा हमेशा जारी रहनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, अगला श्लोक 48 होगा ना? नहीं श्लोक यस 48 होगा। যেই যাহা তাহা দান করে প্রেম ফল, যেই যাহা তাহা দান করে প্রেম ফল, ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল, ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল। ভগবত প্রেমের ফল এতই সুস্বাদু যে ভগবত ভক্তেরা যেখানেই এবং যার কাছেই তা বিতরণ করেন, সেই ফল আস্বাদন করে মানুষ তৎক্ষণাৎ মত্ত হয়। হরি বল। এখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক ভগবত প্রেমের অপূর্ব ফল বিতরণ করার বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা নিজেরাও দেখেছি যে কেউ যখন এই ফল গ্রহণ করে ঐকান্তিকভাবে তার স্বাদ আস্বাদন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সব রকম বদভ্যাস ত্যাগ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই দানের প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে থাকেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণনা এতই ব্যবহারিক যে যে কেউই তা আস্বাদন করে দেখতে পারেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে প্রচারের মাধ্যমে ভগবত প্রেম রূপ মহাফল বিতরণ করার সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের কোনোই সন্দেহ নেই। डिवोटी बनेगा ही बनेगा, वो एटम बम जैसा है। भगवान का भगवत गीता जिस घर में गया वो भक्त बनेगा ही बनेगा, पूरा परिवार। वैसे हरि नाम किसी को दीजिए, हो सकता है बोले तो नहीं हम तो दिया था इनको फिर कुछ नहीं हुआ, हो सकता है तब नहीं हुआ लेकिन उनका खाता खुल गया। यस बंकी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्रे ওই চন্দ্রগ্রহণ দেখতে গেছিল না, যেখান থেকে আমাদের রথযাত্রা শুরু হয়। বক্তব্য কি আমি বলতে সেটাই মনে করছি যে মানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানে চন্দ্রগ্রহণটা যে কোনো অবস্ট্রাকশন নয় বা বাধা নয়, সেইটার ব্যাপারেই বললাম আর কি, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ক্ষুদিত হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করার জন্য কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, সেইখানে টানা। लेकिन अभी हमारा आप लोग से प्रश्न है, भगवान क्या चंद्र ग्रहण देखने गया था कुरुक्षेत्र में? क्या आप लोग को लगता है वही मेन उद्देश्य था? यस पंकज नेताजी प्रभु। नहीं प्रभु जी, चंद्र ग्रहण दर्शन करना नहीं था, वो तीर्थ क्षेत्र में जाके ग्रहण के समय में तीर्थ क्षेत्र में स्नान करना, दान करना, वो एक तो था, और दूसरा वहां पे सब से मिलने का था उनको। यस, मेन उद्देश्य था गोपियों से मिलने। चंद्र ग्रहण तो एक बहाना था मात्र,
मेन तो उद्देश्य था उनका प्रिय गोपियों से मिलना। चंद्रग्रहण में चंद्र का दर्शन नहीं किया जाता। हालांकि वो सूर्य ग्रहण था शायद, वो चंद्र ग्रहण नहीं ये था। तो सूर्य ग्रहण था। चंद्रग्रहण नहीं था। महामाधव को प्रेमो फॉलो पेट भूरी खाए, हरि बोल। महामाधव को प्रेम फलो पेट भरी खाए, मातिलो সকল লোক হাসে নাচে গায়। মাতিলো সকল লোক হাসে নাচে গায়। শ্রী চৈতন্য প্রেম ফল এমনই এক মহামাদক যে কেউই যখন পেট ভরে তা খায় তৎক্ষণাৎ তার প্রভাবে সে মাতাল হয়ে যায় এবং সে আপনা থেকেই কীর্তন করে, নৃত্য করে, হাসে এবং গান করে। हरि बोल। पेट भरे खेले एकदम ऐसे ऑटोमेटिक होगा। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ তা হুঙ্কার, কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ তো হুঙ্কার, দেখি আনন্দিত হইয়া হাসে মালাকার। দেখি আনন্দিত হইয়া হাসে মালাকার। উন্মত্ত হয়ে কেউ গড়াগড়ি যায়, কেউ হুঙ্কার করে, তা দেখে মহান মালাকার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দিত হয়ে হাসে। कोई गौरागुड़ी का ये नवद्वीप में, वृंदावन में बहुत जगह है जहाँ धूला पे ऊपर लुटपुट करते हैं, मालूम है? गौरदह नवद्वीप में परिक्रमा में है, और वृंदावन में भी ऐसा है, लुटपुट करते सब। भगवत भक्त लोग का धूली अपना शरीर में लेता है, ये सब डांसिंग कीर्तन में लोग उन्मत्त हो जाते हैं। तो ম্যাক্সিমাম বিদেশিদের দেখেছি আস্তে আস্তে পুরো পাক খাইছিল। और ये सब देख के मालाकार कौन है? गौरंग महाप्रभु बहुत खुश होता है। यस पंकज तवजीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, नवदीप महात्म्य में आता है जब जीव गोस्वामी को लेके जाते हैं नित्यानंद प्रभु, जहां जहां जाता है एक स्थान में वो घोड़ा घोड़ी। वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर मन केली, वैष्णवेर नामेते उल्लास मोर। यस सत्यवा माता जी। प्रभु परिक्रमा में प्रभु जी जब जब सब कीर्तन कर रहे थे ना, तो पूरा नीचे में मिट्टी मिट्टी धूल था, वो धूल को उड़ा उड़ा करके पूरा कीर्तन कर रहे थे, पूरा बदन में सबका भर गया था। हरि बोल, हरि बोल। यस बंकिम प्रभु। और प्रभु নিত্যানন্দ প্রভু যখন নন্দন আচার্যের ঘরে জিজ্ঞাসা করলেন যে মহাপ্রভুকে, যে তোমার এই যে বৃন্দাবনে যে দৌড়াদৌড়ি ছিল ওটা কি করলে, তখন ও বলে দৌড়াদৌড়ি চেঞ্জ করে নবদ্বীপ আমি গড়াগড়ি শুরু করেছি। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। दौड़ा-दौड़ी छोड़ के गौरा-गौरी कर रहा है। जा जय जय जय। प्रभु जैसे बोले ना कि क्लास से घर गंदा हो जाता है, कल कितने सारे बच्चे आए थे मेरे गेट के पास अबीर ले करके, अब उसको नहीं आने देते तो उन लोग को उत्साह मन पड़ जाता, खुशी खुशी आए थे, कुछ भी नहीं बोले, सबको आने दिए, सब अबीर लगा लगा के मेरे को चले गए, कुछ नहीं बोला मैंने, तो क्या हुआ, घर गंदा हुआ तो हुआ। अच्छा बच्चे तो आनंद किए ना। ओके। উন্মত্ত হয়ে কেউ গড়াগড়ি যায়, কেউ হুঙ্কার করে, তা দেখে মহান মালাকার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দিত হয়ে হাসেন। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই মনোভাব কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারকারী কৃষ্ণ ভক্তদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি রবিবার আমরা রবি বাসুরীয় প্রীতিভোজের आयोजन करी। प्रीतिभोज लव फीस्ट, ये हम लोग का कलकत्ता मंदिर में भी बंद हो गया कुछ साल, फिर से चालू करना पड़ेगा काइट को। ये संडे फीस्ट या लव फीस्ट बोलता है चौपाटी मंदिर में, ये हर एक जगह होता है। प्रभुपाद ने না প্রভু যে মতিঝিলে এখন চালু করেছে প্রসাদ, আমি প্রতি রবিবার জব করতে যাই, ওখানে আজ আমি দুপুরে যাই না বলে সকালবেলা আমাকে প্রসাদ দিয়ে देय। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु पहले हमारा इस्कॉन में भी होता था, हर संडे को संडे फीस्ट होता था, 14 साल पहले की बात बता रही हूँ। अच्छा अच्छा देखिए, तो ये श्रील प्रभुपाद ने ये कंपलसरी किया था संडे को हर एक टेम्पल में लव फीस्ट करने का। लव फीस्ट माने सब दोपहर को लंच सब मंदिर में लेगा, जितना भी गृहस्थ है सब मंदिर में आकर दोपहर, ये प्रभुपाद ने कंपलसरी किया था। जैसे मॉर्निंग में भागवतम होगा, शाम को भगवत गीता होगा, वैसे ही हर एक मंदिर में लव फीस्ट बोल के प्रभुपाद ने शुरू किया था। प्रीति भोज लिखा है ना,
রবি বাসরী ও প্রীতি ভোজের আয়োজন। ইয়েস স্যার, জ্যোতির্ময় सीता माता जी। प्रभु व्हाट डज दिस मीन? वही एक लव नाम फीस्ट? दिया, एक प्रोजेक्ट का नाम दिया, जो सब आएगा दोपहर को लेक्चर सुनेगा और वहीं प्रसाद लेगा, फ्री प्रसादम। लव फीस्ट में प्रभुपाद ने कंपलसरी किया था फ्री प्रसादम, इसीलिए संडे देखिएगा, संडे फीस्ट जो होता था उसमें कोई प्रसाद का चार्ज नहीं लगता था। प्रभुपाद ने ये बनाया था, प्रभुपाद ने ये लिखा था सबको, एवरी अच्छा अच्छा, दिस इज देयर इन राजबिहारी, दिस इज देयर इन राजबिहारी। चौपाटी में भी है, चौपाटी बहुत मंदिर में है, हम लोग का मंदिर में था, ये बहुत साल था, अभी अचानक बंद हो गया, आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली पानियाटी में भी था, बंद हो गया। पानियाटी में है, यस। वो वाला फीस्ट फ्री रहता है सबके लिए, जैसे शाम को खिचड़ी वितरण सबके लिए फ्री है, वैसे दोपहर का संडे वाला जो लंच प्रसादम है वो सब लेक्चर अटेंड करेगा, कूपन दिया जाएगा उस समय, और लेक्चर के बाद सबके लिए लंच प्रसाद फ्री रहेगा। ये प्रभुपाद कंपलसरी किया था, अभी लुप्त हो गया, हो सकता है डोनर का अभाव में या एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली पैसे का कोई कमी नहीं है, 1000 लोग आ जाएगा देने के लिए। लोग बोलेगा प्रभु जी मेरा 1 साल का बुकिंग कर लीजिए। हमको अभी भी याद है, हम जब वृंदावन में रहते थे, ये लाइन लगा रहता था कि अगले साल कौन सेवा लेगा। वृंदावन में मंदिर में, कृष्ण बल्लभ मंदिर के उधर प्रांगण में, अभी गौशाला में प्रसाद लेते, लंच एंड ब्रेकफास्ट इज फ्री। कैन यू इमेजिन? लंच एंड ब्रेकफास्ट इज फ्री, जितना भी लोग आए, 1000 लोग आए, उनके लिए लंच एंड ब्रेकफास्ट इज फ्री आजीवन। हर एक साल कोई ना कोई सेवा ले लेता है। अगला साल मेरा है, 365 दिन लंच फ्री मेरा है, डिनर ब्रेकफास्ट फ्री, ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों फ्री है। इसलिए वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहेगा। किसी को भजन कीर्तन करना है करिए, कोटि कोटि डोनर है जो इन लोग को सुविधा कर देगा कि आप लोग को टाका कमाना नहीं पड़ेगा खाने पीने के लिए। वो आयोजन भगवान और भक्त लोग ऑलरेडी कर दिया। প্রভুজি রাজারহাটে মানে অন্নদান হয় প্রতিদিন বিকেল বেলা। আমি এক বছর একদিনে খরচা 6500 টাকা, মানে প্রতিদিন অন্নদান হয় রাজারহাটে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। तो ऐसा तो इसीलिए वो फिर से हम लोग को चालू करना पड़ेगा संडे फीस। एक्चुअली वही बोला ना, पैसे का अभाव नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का अभाव है। लोग आता नहीं है, एक कोई दायित्व लेकर। देखिए एक एक महान लोग हैं, इन लोग बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, एक एक जगह में बहुत सक्सेस है। ये सब व्यक्ति अगर भगवान का मंदिर में आकर सेवा करे, कोई अगर संडे फीस्ट का सेवा ले तो कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, बट पीपल विल नॉट टेक। वो ज्यादा अपना भौतिक कार्य में लगा रहेगा। कोई एक प्रोजेक्ट ले ले, इतना भक्त इतना दिन काम कर रहा है, इतना सेवा कर रहा है, इतना क्लास अटेंड कर रहा है, हाउ व्हाई समबडी कम अप एंड बोलिए प्रभु मैं ये प्रोजेक्ट का सेवा लूंगा, मैं आई विल टेक फ्रॉम डोनेशन कलेक्शन टू इंश्योरिंग दैट एवरी डे इट हैपेंस कंटिन्यूअसली, मैं दायित्व लूंगा। नोबडी कम्स, कोई नहीं आता है। नहीं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और मैंने बताया ना, टाका का कोई अभाव नहीं रहता है। लोग पैसा लेके पॉकेट में बैठा हुआ है देने के लिए, भगवान का सेवा के लिए, लेकिन कोई उन लोग का अप्रोच नहीं करता है। लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ लीडर्स, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं तो ये बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे फेल हो जाता है। लोग आदमी घर में बैठे रह रहे हजारों समय नष्ट करेगा, लेकिन भगवान का मंदिर में आकर योगदान नहीं करेगा, दायित्व नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फंस गया तो फंस गया। अच्छा है तो इस फंस जाने में, इसमें फंसना तो अच्छा है। बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा दुकान सब चलाता है, इन लोग क्या ये छोटा सेवा नहीं ले सकता है? नहीं लेगा और बैठे रहेगा घंटा पर घंटा, लेकिन नहीं लेगा सेवा। नरेंद्र सर्व चैतन्य प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हम लोग नवद्वीप परिक्रमा में पुरुषोत्तम महाराज ने नवनी सरोवर में बताया कि देखिए आप लोग जितना भक्त लोग को आया, पहले तो गाड़ी में हो रहा था, उसके बाद फिर कैंप, हम लोग स्कूल में रह के ही हुआ, अभी तो कैंप है। कैंप में बहुत और आगे वाला जो पैसा वाला जो है वो लोग बोला कि प्रभु आप लोग जमीन तो ले लिया, हम लोग को चाहता है कि कैसे सब मैंने बनाने का पूरा फिक्स घर बनाने का। तो महाराज ने बोला कि देखिए आप अकेला देने से नहीं होगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि सबका घर से 1-1 रुपया, तो वैसे हिसाब से अभी का जमाने में 1000 रुपया, मिनिमम 1000 रुपया। आपको 2 लाख रुपया देना है वैसे नहीं लगा, 1000 रुपया से ज्यादा नहीं लगा ना कम नहीं लगा। तो यहाँ भी बहुत भक्त लोग भी मैंने बात उठाते, तो वहां पर सुन के राजापुर में
पूरा वो कैंप में एक भक्त ने बोला कि हम पूरा यहाँ बना देगा कैंप। वैसे यहाँ भी जैसे हम लोग को मंदिर में जैसे कोई भी फिक्स है, कोई अन्नदान है, कोई भी है, बोलने से आदमी लोग करेगा, नहीं तो सबके पास तो जेब में पैसा है, एकदम कहाँ पर कैसे दान देना है कैसे नहीं उसको पता नहीं होगा, कैसे देगा। तो अब बात में संघर्ष में हम भी पैसा वहां दिया, बहुत अच्छा लगा महाराज ने, बहुत मैंने 1 कोटि ना कितना हो गया से। हरि बोल। बस बोलना है, सिर्फ हिम्मत करके बोलना पड़ेगा, सब ऐसे ही आ जाता है। थोड़ा एक पैराग्राफ बाकी है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, टाइम भी हो गया। मेरा एपोलॉजी है, जो हम जो क्लास कर रहे हैं ना, हम लोग थोड़े मंथली थोड़ा फीस ले लीजिए प्रभु जी, मैं ये जमा करके भगवान की सेवा लगाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मंथली काट लेगा तो हम लोग को अच्छा शोगुन मिलेगा। प्रभु जी आप मेरे एपोलॉजी, आप सोचिए, आपको अभी का नहीं सोचिए, आप मेरा बात थोड़ा रियलाइज कीजिए जो बोल रहे हैं। हरे कृष्ण। एक প্যারাগ্রাফ ছোট বাকি है। আমরা যখন দেখি যে মানুষ সেখানে আসছে, कीर्तन करছে, अगर मंथली किसी को देना है तो नित्य सेवा है ना, वहां दे दीजिए ना। इस्कॉन कलकत्ता में तो है नित्य सेवा, मंथली आप रिकरिंग दे सकते हैं। भक्ति वृक्ष मॉडल में फीस लेना अलाउड नहीं है, प्रचार के लिए हम लोग फीस नहीं ले सकते, तो लोग गलत समझेगा। आपका उद्देश्य अच्छा है ठाकुर मंदिर का सेवा में, लेकिन हम लोग इस प्रचार के थ्रू से, ये प्रीचिंग के थ्रू से हम लोग नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है मॉडल में। तो अगर किसी को अच्छा बात है तो वो अच्छा बात बोला, तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि मंदिर में नित्य सेवा बोल के एक डिपार्टमेंट है, जहां आप हर एक महीना आप कुछ पोर्शन 1000 रुपया 1500, बहुत भक्त लोग जुड़े हुए हैं और बहुत भक्त लोग सालों साल दे रहे हैं, मैंने कोई भक्त लोग 10-20 साल हो गया दे रहा है। ओके, আমরা যখন দেখি যে মানুষ সেখানে আসছে, কীর্তন করছে, নৃত্য করছে, প্রসাদ গ্রহণ করছে এবং আনন্দিত হয়ে গ্রন্থাবলী কিনছে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরনের অপ্রাকৃত কার্যকলাপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্যই উপস্থিত রয়েছেন এবং তা দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হচ্ছেন ও আনন্দিত হচ্ছেন। তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে এই আন্দোলনকে আরো বেশি করে প্রসারিত করা, যাতে মানুষ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবদান্য দান গ্রহণ করতে পারে। তাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হয়ে মৃদু হাস্য সহকারে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন এবং তার কৃপা বর্ষণ করবেন। তার ফলে এই আন্দোলন সফল হবে। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে বলো হরি হরি। हरि बोल।